नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज हम बात करेंगे रॉक्स के बारे में. Today we will study about rocks. Let me share my screen. So what are rocks? What are minerals? What are ores? What's the difference between these three terms? So rocks क्या होते हैं? Naturally occurring solid material that forms the Earth's lithosphere is called rock. Naturally occurring solid and it forms the lithosphere. That's rock. Solid inorganic substances of natural occurrence having a definite chemical composition and crystalline structure are called minerals. All rocks have some amount of minerals in them. So there are 5 properties of minerals that are covered in this definition. First, it has to be solid. Minerals are solid. Minerals are inorganic, having natural occurrence, definite chemical composition, and crystalline structure. So solid, inorganic, natural, definite chemical composition, and crystalline structure. These are minerals. A naturally occurring solid material from which a valuable metal or mineral can be extracted is called an ore. So ore is basically, these are rocks with exceptionally high available mineral content. And the study of character and the origin of rocks is called petrology. I repeat, the study of character and origin of rocks is called petrology. Types of rocks. So what are the types of rocks? So rocks are of 3 types, 3 broad categories: primary rock, secondary rock, and tertiary rock. So based on the modes of formation of the rock, based on the origin of the rock, rocks are of 3 types: primary rocks, secondary rocks, and tertiary rocks. Primary rocks are also called igneous rocks. Igneous rocks are again broadly categorized as intrusive or plutonic rocks, which is granite or pegmatite. Extrusive or volcanic rocks like pumice, basalt, andesite. Secondary rocks are called sedimentary rocks. Examples are limestone and shale. These are soft rocks. Tertiary or metamorphic rocks. These are broadly categorized as 2 types: foliated with layers on them, non-foliated. So foliated are slates, phyllites, myelonites, or marble. Non-foliated are soapstone and serpentine. Tertiary rocks are often very hard. So primary rocks or the igneous rocks are hard rocks because they are formed out of cooling of molten magma. And tertiary rocks are also hard because they are formed as a result of hardening of primary or sedimentary rocks under the influence of heat and pressure. तो प्राइमरी रॉक्स को igneous rocks भी कहा जाता है और igneous rocks को 2 क्लासेस में हम कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन जो कि उस पर निर्भर है कि वो igneous rock बना कैसे. तो इंट्रूसिव igneous rock या प्लूटोनिक igneous rock होता है. एग्जाम्पल है ग्रेनाइट या पेगमाटाइट. एक्सट्रूसिव igneous rocks या वोल्केनिक igneous rock होता है और उसका एग्जाम्पल है प्यूमिक, basalt and andesite. फिर होता है सेकेंडरी रॉक या सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल बहुत आसान एग्जांपल है लाइमस्टोन, बहुत सॉफ्ट रॉक है. शेल अगेन. टर्शरी रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं इसको. तो मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी रॉक से. अगर प्राइमरी और सेकेंडरी रॉक को बहुत ही गर्म, बहुत ही ज्यादा तापमान और बहुत ही ज्यादा प्रेशर का जब इन्फ्लुएंस होता है तो हमें मेटामॉर्फिक रॉक मिलता है. और मेटामॉर्फिक रॉक के 2 क्लासेस हैं. पहला होता है फोलिएटेड, जिसका एग्जांपल है स्लेट, फिलाइट, माइलोनाइट, मार्बल. नॉन फोलिएटेड सोपस्टोन या सर्पेंटाइन. igneous rock के बारे में और जानते हैं. igneous rocks or the primary rocks are of 2 types: extrusive and intrusive. Extrusive igneous rocks are formed by the cooling of lava on the surface of the earth. So
एक्सट्रूसिव रॉक तब बनता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, जो कि वोल्केनिक इग्नियस रॉक भी कहते हैं, वो तब बनता है जब लावा अर्थ के सरफेस पे ठंडा होता है। और क्योंकि वो अर्थ के सरफेस पे एक्सपोज लावा है, वो बहुत जल्दी ठंडा होता है, और इसमें जो पोर्स है रॉक के अंदर वो ज्यादा बड़े नहीं होते, क्योंकि रॉक तुरंत ठंडा हो जाता है, तो ग्लासी शीशे जैसा होता है। और इसको एफेनेटिक रॉक भी कहते हैं। एग्जाम्पल है बसॉल्ट। और ये मोस्टली डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे बनता है, क्योंकि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे दो प्लेट अलग होती हैं, और लावा को निकलने के लिए बहुत आसानी से ये स्पेस मिल जाता है, और लावा बाहर आता है, और बाहर तुरंत ठंडा हो जाता है, और हमें मिलता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, जिसको वोल्केनिक इग्नियस रॉक भी कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, मतलब जो अंदर ही बना, इसको प्लूटोनिक या हाइपरबिसल इग्नियस रॉक भी कहते हैं। It is formed by the cooling and subsequent crystallization of magma over a period of time within the crust. These are coarse-grained, also called phaneritic, and examples are granite, gabbro और diorite. इसमें क्या होता है कि जो मैग्मा है वो बाहर नहीं निकल पाता है, और वो रॉक के क्रेविसेस में कहीं फंसा होता है, और क्योंकि वो अंदर ही अर्थ क्रस्ट के अंदर ही रॉक के क्रेविसेस में कहीं फंसा है, तो वो धीरे 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 ठंडा होता है, और इसको हम फेनेरिटिक रॉक भी कहते हैं, इसको हम प्लूटोनिक या हाइपरबिसल रॉक भी कहते हैं, और इसके एग्जांपल है ग्रेनाइट, गैब्रो या डायोराइट। और जो टिपिकल इंट्रूसिव बॉडीज है, जो रॉक के स्ट्राटा के अंदर जो इंट्रूजन होता है, उसके भी टाइप्स हैं। उसके टाइप्स हैं लैकोलिथ, बैथोलिथ्स, सिल्स, डाइक्स एंड स्टॉक्स। तो कुछ नहीं है, जो इंट्रूजन जो रॉक के अंदर मैग्मा फंसता है, वो उसको शेप के आधार पे अलग अलग नाम दिया गया। जैसे लैकोलिथ होता है, वो छोटा होता है और थोड़ा हंसिए के शेप का होता है, फिर बैथोलिथ होता है, सिल होता है, फिर डाइक होता है, फिर स्टॉक होता है। सब शेप के आधार पे अलग अलग नाम दिए गए हैं इंट्रूजन को, अलग अलग जो मैग्मा जहां जहां रॉक में फंसता है, जिस शेप में फंसता है उसको। Extrusive igneous rocks are cooled quickly. As a result, they are fine-grained or have a lack of crystal growth. Intrusive igneous growths are formed from magma that cools slowly, and as a result, these rocks are coarse-grained. This is an example of laccolith. अब यहाँ देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जिस जिस रूप में मैग्मा अंदर ठंडा होता है और जो शेप लेता है, जो मैग्मेटिक इंट्रूजन होता है, उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे ये है बैथोलिथ, बैथोलिथ बड़ा है, लैकोलिथ ये छोटा हंसी जैसा शेप का है, डाइक ये वर्टिकल है, सिल ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल है, स्टॉक ये इसका अलग तरह का शेप है। तो यही है, शेप के आधार पे, बेसिकली मटेरियल वही है, शेप के आधार पे इन सब इंट्रूजन्स का नाम अलग अलग है। So the magmatic intrusions which happen within the strata of rock are named differently based on the different shapes. Like a laccolith, which is somewhat flat shaped, and it's called a laccolith, and it's not a very big intrusion. Then there is the dike, which is somewhat vertical. Then there's a sill, which is somewhat narrow yet horizontal. Similarly, there is this pluton, there is a black batholith, then there's a stock. These are the same material, same magmatic material cooling within the rock strata, named differently based on their shapes. Formation of metamorphic rock. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक जो है, जो भी पेरेंट रॉक होता है उससे फॉर्म होता है। वो पेरेंट रॉक इग्नस भी हो सकता है, वो पेरेंट रॉक सेडिमेंट्री भी हो सकता है, और वो पेरेंट रॉक दूसरा मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकता है, जिससे मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। तो जनरली जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है वो पेरेंट रॉक से ज्यादा हार्ड होता है। So original rocks are called protoliths when subjected to temperatures above 150 to 200 degrees Celsius and pressures of 100 megapascal. Undergo chemical and physical changes via a process called metamorphosis. Metamorphosis means change of form. Thus metamorphic rocks are formed. तो ओरिजिनल रॉक को कहते हैं प्रोटोलिथ, और जब ओरिजिनल रॉक के ऊपर 150 से 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का असर होता है और 100 मेगापास्कल तक प्रेशर पड़ता है, तो उस रॉक में केमिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं। इस केमिकल और फिजिकल चेंज को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, और जो रॉक बनता है उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन पेरेंट रॉक्स are subjected to high pressure and temperature.
The original rock is called protolith, metamorphic rock, and finally we get the metamorphic rock. एग्जाम्पल है प्रोटोलिथ का लाइमस्टोन, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, बहुत ही सॉफ्ट रॉक होता है, और जब उसका मेटामॉर्फोसिस होता है तो वो मार्बल बन जाता है, जो कि लिटरली हार्ड रॉक होता है. प्रोटोलिथ इग्नेस सेडिमेंट्री या दूसरा कोई मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकता है. मेटामॉर्फिक रॉक का भी क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन केमिकल या मिनरल कॉम्पोजिशन. ओरिजिनल रॉक, पेरेंट रॉक क्या था, प्रोटोलिथ क्या था, एंड टेक्सचर कितना पोरस है, सॉफ्ट है, हार्ड है, उस बेसिस पे मेटामॉर्फिक रॉक्स को भी हम कैटेगराइज करते हैं. सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होती हैं. तो सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन में पहले जो सेडिमेंट होते हैं वो किसी भी रॉक के सेडिमेंट हो सकते हैं, सॉइल के सेडिमेंट हो सकते हैं. सेडिमेंट एक जगह डिपॉजिट होते हैं. फिर होता है कॉम्पैक्शन, बरियल एंड कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट लेयर्स वन ओवर द अदर. एक सेडिमेंट लेयर आई, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, और ये दबती गई, कॉम्पैक्ट होती गई. Then comes cementation. Dissolved materials and minerals in the water bind rock particles and rock layers. Cementation में क्या होता है, एक के ऊपर दूसरी तीसरी रॉक है और वो दबी हुई है, उसमें जो डिजॉल्व मटेरियल हैं और मिनरल्स हैं, वो जो पानी में हैं, जिसकी वजह से सेडिमेंट्स यहाँ तक पहुंचे हैं, वो मिनरल्स ही आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और वो जो एक रॉक, एक सेडिमेंट की लेयर और दूसरी लेयर के बीच में बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं बाय मिनरल्स, और वो आपस में सीमेंट हो जाते हैं, मतलब जाम हो जाते हैं बाय दोस बॉन्ड्स. फिर होता है लिथिफिकेशन. लिथिफिकेशन का लिथोस मतलब होता है रॉक, लिथिफिकेशन का मतलब होता है रॉक जैसा हो जाना, हार्डन हो जाना. तो सीमेंटेड जब हो गए, एक के ऊपर एक लेयर आई, कंपैक्ट हुआ, फिर आपस में बॉन्ड्स बने, सीमेंट हो गया, जाम हो गया, फिर लिथिफिकेशन होता है, फिर वो ओवर टाइम एकदम हार्ड पत्थर हो जाता है, और वही होता है लिथिफिकेशन. सो फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इज एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस. The first is deposition of sediments. Sediments come and they get deposited. Then there is compaction, which is one layer of sediments get compacted over other layer of sediments. This other layer of sediments then get compacted by a third layer of sediments. So one layer of sediments over the other gets compacted over a period of time. Then comes cementation. One layer of sediments starts to form bonds with another layer of sediments via minerals, which are dissolved minerals which via water. So the layers begin to form bond with one another and they become cemented or blocked. Then comes lithification. That's the final stage, where the cemented layers become hard and form a rock. That's lithification. So that's the formation of sedimentary rocks. Sedimentation, compaction, cementation, and lithification. Sometimes the cementation might also happen because of microbial activity, which might release slime, and they might cause the cementation of one layer over the other. Stalactites and stalagmites. This is a very important question, which is sometimes asked from environmentalists. What are stalactites? What are stalagmites? What are limestone pillars? So what happens when there are caves made of limestone? So caves are made of limestone oftentimes, and when running water travels over these limestone caves, the water drips down. Pani niche girta hai. And with the dripping water, the water dissolves the limestone in it, and it forms hanging limestone stalactites from the limestone cave ceiling, like here. This is a limestone cave, and the water must have run above the cave, and the dripping water caused these limestone to dissolve and form these straws and stalactites and drips. Similarly, this dripping water, when falls on the ground and the water already has dissolved limestone in it, this limestone starts to form pillar-like structures from above the ground also, like these pillars. So when limestone structures are formed from below the ground to above, these are called stalagmites. And when limestone structures are formed hanging from the roof of the limestone cave, these are called stalactites. So stalactites and stalagmites. When stalactites and stalagmites, they join together, they form a pillar or a column. These are called limestone pillars. Like here, this one, stalactite and the stalagmite, they rose up and they met each other to form a pillar. And these are called limestone pillars. And based on the shape, this is the stalactite might be called drapes,
drapery, or it might be called straws when the shape is very thin. When it becomes a bit thick, it's stalactites. When it becomes wavy, it's drapery. So it's all basically all stalactites of different shapes. And when it rises from above the ground, it's stalagmites. Together, stalactites and stalagmites form limestone pillars or a limestone column. Now, we have known enough about the rock. Let's talk about rock cycle. Rock cycle में क्या होता है? Primary rock, which is the igneous rock. First is the magma. So magma comes out, it cools, it becomes igneous rocks. And sometimes the igneous rocks might melt when it goes with the subduction zone. The igneous rock goes within the subduction zone. It melts and it forms back magma. So that's a to and fro process here. So magma cools down to form igneous rocks, and when igneous rock is subdued within the subduction zone at a convergent plate boundary, it forms back magma again. After igneous rock is acted upon by weathering, agents of weathering, and the erosion happens, they form sediments. Sediments, they are compacted and cemented and liquefied to form sedimentary rocks. Sedimentary rocks, when are acted upon by heat and pressure, form metamorphic rocks. Igneous rocks also, when acted upon by heat and pressure, form metamorphic rocks. And metamorphic rocks, igneous rocks, and sedimentary rocks, all of them, when weathered and when eroded, they form sediments. So the rock cycle continues from igneous to sedimentary, sedimentary to metamorphic, metamorphic to magma, and then magma to igneous. So as you can see, this is a rock cycle. First stage is magma, then igneous. Weathering and erosion causes sediments, then sedimentary rocks. Heat and pressure causes metamorphic rocks. Metamorphic rocks, igneous rock, and sedimentary rock all are again weathered and eroded, and they form the sediments back again. So that's rock cycle. तो पहले मैग्मा जो होता है वो ठंडा होता है, इग्नेस रॉक बनाता है. इग्नेस रॉक का वेदरिंग और इरोजन होता है, सेडिमेंट्स बनाता है. सेडिमेंट्स कंपैक्शन सीमेंटेशन होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स पर जब हीट और प्रेशर एक्ट करता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बनाते हैं. और मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नेस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक फिर से वेदरिंग और इरोजन होता है और फिर से सेडिमेंट्स बनते हैं और फिर से वो प्रोसेस चालू होता है. ऑल्सो मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नेस रॉक कभी कभी जब सबडक्शन जोन के थ्रू सबडक्शन जोन में अंदर स्थैनोस्फीयर में चले जाते हैं तो फिर से मेल्ट होकर फिर से मैग्मा बनाते हैं. तो रॉक साइकिल हमेशा नेचर में चलता ही रहता है. वेदरिंग क्या है और एजेंट्स ऑफ वेदरिंग क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स व्हेन एक्टेड अपॉन बाय एजेंट्स ऑफ वेदरिंग. सो वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स व्हेन एक्टेड अपॉन बाय एजेंट्स ऑफ वेदरिंग. एजेंट्स ऑफ वेदरिंग क्या है? वाटर, आइस, एसिड्स, सॉल्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड चेंजेस इन टेम्परेचर. ये सारे एजेंट्स ऑफ वेदरिंग है. बेसिकली जिन जिन कारणों से वेदरिंग होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स होता है, उनको हम एजेंट्स ऑफ वेदरिंग कहते हैं. उसमें पानी होता है, पानी एक एजेंट ऑफ वेदरिंग है. बर्फ, एसिड्स, सॉल्ट्स या नमक या जो एसिड और बेस के रिएक्शन से जो भी सॉल्ट्स बनते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, जो माइक्रोबियल प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनसे भी एजेंट्स ऑफ ये भी एजेंट्स ऑफ वेदरिंग हो सकते हैं. टाइप्स ऑफ वेदरिंग: फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग को हम मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं और ये आइस और चेंजेस इन टेम्परेचर से होता है. आइस मतलब बर्फ और चेंजेस इन टेम्परेचर, तापमान का बदलाव, इन सबसे फिजिकल वेदरिंग होता है. केमिकल वेदरिंग में केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं जैसे हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन एंड कार्बोनेशन कॉज्ड बाय वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री, फॉर एग्जांपल एसिड रेन. Biological weathering, also called organic weathering, caused by plants and animals due to root penetration, burrowing, and chemicals produced by microbes causing mineral weathering. So biological weathering जो होता है वो microbial plants और animals या बड़े plants की वजह से होता है. जब plants का रूट जो है वो रॉक के crevices में फंस जाता है और रॉक को फाड़ देता है, तो वो होता है biological weathering. कभी कभी microbial plants और animals जो रॉक के crevices में पनपते हैं वो ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से भी रॉक का मिनरल रिजोल्यूशन होता है या वेदरिंग होता है. तो ये होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग. तो बेसिकली फिजिकल वेदरिंग जो है वो आइस, बर्फ और तापमान के बदलाव से होता है, कॉज्ड बाय आइस एंड चेंजेस इन टेम्परेचर. और इससे जो है
रॉक में फैलना और सिकुड़ना जो चेंजेस ऑफ टेम्परेचर की वजह से होता है वो हो नहीं पाता और रॉक फटता है, तो ये फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग भी है। केमिकल वेदरिंग में केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं और उनका एजेंट है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या एसिड रेन। बायोलॉजिकल वेदरिंग में माइक्रोबियल प्लांट्स या बिग प्लांट्स उसका कारण बनते हैं। केमिकल वेदरिंग के रिएक्शंस क्या क्या हैं, तो हम सब जानते हैं एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और रेन वाटर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और रेन वाटर दोनों मिला के कार्बोनिक एसिड बनते हैं, बहुत ही कॉमन एसिड है जो कि रेन वाटर में थोड़ा सा हमेशा मिला होता है। ये कार्बोनिक एसिड रॉक्स के क्रेविसेस में जाते हैं और मिनरल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और मिनरल्स को डिसॉल्व करते हैं और वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है। तो डिसोल्यूशन। दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। ये जो मैंने आपको बताया डिसोल्यूशन था कि कार्बन डाइऑक्साइड और रेन वाटर मिला, कार्बोनिक एसिड बना और रॉक्स के मिनरल्स को डिसॉल्व कर लिया, डिसोल्यूशन। दूसरा केमिकल रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज टू आयंस। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन का तो मतलब ही होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ऑक्सीजन का ऑक्साइड आयन बना, और वो जब आयरन और मैग्नीशियम रिच मिनरल्स जो कि रॉक में होते हैं उनसे रिएक्ट करता है तो उसका वेदरिंग होता है और बनता है हेमाटाइट या लिमोनाइट। तीसरा होता है हाइड्रोलिसिस, मतलब H+ इन्वॉल्व है यहाँ पे। The process causes the dissociation of water molecules and the release of H+. Water molecules polar होते हैं, तो पार्शियल जो ऐसे शेप होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, यहाँ ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स। यस, हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, और इसलिए वो पोलर मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट नहीं, थोड़ा पोलर है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है। तो जब हाइड्रोलिसिस होता है तो H+ जो है वो रिलीज हो जाता है और वो H+ फिर रॉक्स के मिनरल्स के साथ रिएक्ट करेगा, उनको अटैक करेगा। तो हाइड्रोलिसिस कन्वर्ट्स फेल्डस्पार टू क्ले। द H+ of the water molecule dissociates, H+ is released and the H+ of water molecule converts feldspar to clay. feldspar को वो क्ले में कन्वर्ट कर देता है, तो यहाँ भी वेदरिंग हुआ। और ये केमिकल रिएक्शंस एक बार नोट करने के लिए हैं। रेजोल्यूशन में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्साइट प्लस कार्बोनिक एसिड, और इसने कैल्शियम आयंस को और बाइकार्बोनेट आयंस को डिसोशिएट कर दिया, डिसोल्यूशन। ये एक रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, पायरोक्सिन है FeSiO3 और वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट हुआ और वाटर के प्रेजेंस में, और फिर बनाया FeO2H which is limonite और SiO2 which is silica। तो पायरोक्सिन, ऑक्सीजन और वाटर का रिएक्शन हुआ और लाइमोनाइट और सिलिका बनाया, तो ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो गया। फिर है पोटेशियम फेल्डस्पार, जिसके साथ हाइड्रोजन आयन का रिएक्शन हुआ और वाटर का रिएक्शन हुआ, उसने बनाया पोटेशियम आयन और कायोलिनाइट प्लस सिलिका। तो पोटेशियम आयन को डिसोशिएट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिए कि H+ जब एक्ट हुआ पोटेशियम फेल्डस्पार पे, तो पोटेशियम आयन डिसोशिएट हो गए, मॉलिक्यूल से अलग हो गए। सिमिलरली जब ऑक्सीजन, वाटर और पायरोक्सिन का रिएक्शन हुआ साथ में, तो लिमोनाइट और सिलिका बनाया, और कैल्साइट और कार्बोनिक एसिड का रिएक्शन हुआ साथ में, तो कैल्शियम आयन डिसोशिएट हुआ, बाइकार्बोनेट आयन डिसोशिएट हुआ। तो बेसिकली वेदरिंग रिएक्शंस में ऑक्सीजन आयन या हाइड्रोजन आयन वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं रॉक के मिनरल्स के साथ और रॉक के मिनरल्स को आयोनाइज कर देते हैं, तोड़ देते हैं। Then what happens? Erosion, transportation and deposition of sediments. एक बार sediments बन गए, sediments रॉक का वेदरिंग हो गया, फिर क्या होता है, erosion, transportation and deposition. So the first stage is weathering of rocks, then comes erosion plus transportation, then deposition, then compaction of sediments, cementation of sediments and lithification of sediments. So we know weathering is the disintegration of rocks. Once the rocks are disintegrated, these are eroded, carried away, and then transported. Erosion is carrying away of rock fragments from its point of origin, and then these are transported and deposited at the final point, or the destination point. Once the fragments of rocks or the sediments are deposited, they start
compacting one layer over the other, sediments get compacted. And then they start forming bonds and the sediment layers are cemented. And finally, these cemented sediment layers harden and become rocks. And that's how sedimentary rocks are formed. The process by which sediments or fragments of rock are carried away from the point of origin to another location is called erosion. The factors or agents which cause erosion are gravity, water, wind, and glaciers. तो agents of weathering हमने जाना, agents of erosion भी होता है. Erosion कैसे होता है? Gravity से, water पानी से, wind से हवा से, या glacier से. जब gravity से erosion होता है तो simply एक elevated point से जो sediments है वो नीचे gravity के through by the force of gravity नीचे आ जाते हैं. जैसे लैंडस्लाइड वगैरह होता है या ऐसे भी ग्रेविटी से वो नीचे ढुलक जाते हैं. So erosion from gravity occurs when rock fragments or sediments travel from a point of higher elevation to another location of lower elevation, like from a hill to a plains. That's erosion from gravity. Then erosion from water. So there are two mechanisms by which streams erode sediments. The first mechanism is entrainment, where water currents or eddies lift out loose particles of solid rocks. So there are loose particles on solid rocks, and water currents or eddies, they lift out, they erode the loose fragments of the rocks. That's entrainment. So the loose fragments of the rock are carried away by water currents. So it's a physical process. Dissolution is another mechanism by which streams erode sediments. It's a chemical process. So soluble materials or minerals like ions, like ferrous ions, magnesium ions, these are charged ions. So these dissolve, these form weak bonds with, as we discussed earlier, these form bonds with water molecules, and they dissolve in water. And soluble minerals and materials are dissolved in water and carried away to another location. So that is a chemical process by which streams erode sediments. So sediments जो erode होते हैं streams से, वो दो तरह से होते हैं. एक physical process होता है जिसको entrainment कहते हैं. उसमें जो पानी की जो धाराएं हैं, वो जो रॉक का जो लूज पार्टिकल है, पत्थर का जो छोटे छोटे कण है, उसको उन धाराएं अपने तरफ खींच लेती हैं. Entrainment ये physical process है. दूसरा होता है डिसोल्यूशन, केमिकल प्रोसेस. इसमें जो पत्थर में जो मेटल आयंस हो सकते हैं, चार्ज आयंस जो भी पत्थर में है, मिनरल्स हैं, वो वाटर के साथ बॉन्ड बनाते हैं और पानी में वीक बॉन्ड बनाते हैं और पानी में घुल जाते हैं और पानी में घुल के वो पत्थर से अलग हो जाते हैं. तो ये केमिकल प्रोसेस है डिसोल्यूशन. एक और वर्ड है जो हमें जानना चाहिए, सेडिमेंट लोड. सेडिमेंट लोड क्या होता है? पहले होता है डिसॉल्व सेडिमेंट लोड, फिर होता है सस्पेंडेड सेडिमेंट लोड, और फिर होता है बेड सेडिमेंट लोड. डिसॉल्व सेडिमेंट लोड जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, जो कि रनिंग वाटर में घुला मिला होता है. डिसॉल्व सेडिमेंट लोड रनिंग वाटर में घुला होता है. सस्पेंडेड सेडिमेंट लोड ये थोड़ा बड़ा कण होता है, तो ये रनिंग वाटर में पूरी तरह घुल नहीं पाता है, लेकिन क्योंकि वाटर में फ्लो है तो वाटर में तैरता रहता है, फ्लोटिंग होता है इसमें. सो डिसॉल्व सेडिमेंट लोड, सस्पेंडेड सेडिमेंट लोड, which are finer particles of rocks which float in the water or suspended in the water. Bed load. Bed load are heavy sediments which are heavy that the water currents cannot lift it up, and they are on the bed of the river and they are carried with the flow of the river. So dissolved तो पानी में घुला हुआ है, suspended जो है वो पानी में तैर रहा है. और जो बड़े बड़े रॉक पीसेस हैं या बड़े बड़े सॉइल सेडिमेंट्स हैं, वो डिसॉल्व नहीं हो पाते या सस्पेंड नहीं हो पाते पानी की करंट्स पर, और वो तलहटी में नदी या स्ट्रीम के तले में बैठे होते हैं, लेकिन वो धाराओं के साथ तले के साथ बहते रहते हैं. So heavy sediments carried along the river or the stream bed are called form the bed load. Types of soil erosion from water. क्योंकि हम रॉक इरोजन, हम वेदरिंग फिर रॉक का इरोजन पढ़ रहे हैं, तो सॉइल इरोजन के बारे में भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में या एमएससी के एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है सॉइल इरोजन के बारे में. तो सॉइल इरोजन के टाइप्स हैं स्ट्रीम बैंक या राइपेरियन इरोजन, रिल और गली इरोजन एंड शीट इरोजन. ये तीन टाइप हैं सॉइल इरोजन के.
तो स्ट्रीम बैंक और राइपेरियन इरोजन में क्या होता है, इसमें जब नदी या कोई स्ट्रीम बहती है तो अपने साइड से, किनारों से मिट्टी या रॉक्स को काटते हुए निकलती है, किनारों से इरोजन करती है, इरोड करती है। उसको हम कहते हैं स्ट्रीम बैंक या राइपेरियन इरोजन। रिमूवल ऑफ रॉक्स एंड सॉइल सेडिमेंट्स फ्रॉम स्ट्रीम बैंक्स where running water is called stream bank or riparian erosion. Then comes rill and gully erosion. What happens? So rill is a small ravine or valley carved by running water serving as drainage for rainwater. Small rills become gullies. So जब पानी बहता है और वो अपना बहते बहते अपना रास्ता बना लेता है, पानी सेडिमेंट्स को, रॉक्स को, सॉइल को काट काट के अपना रास्ता बना लेता है, एक वैली कार्व कर लेता है। तो पहले वो जो रास्ता होता है वो छोटा होता है, रिल होता है, फिर वो छोटा रास्ता बड़ा होते 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 वो एक गली, मतलब एक पूरी गली, एक रास्ता बना लेता है, उसको हम कहते हैं गली इरोजन। एक होता है शीट इरोजन, उसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल इन थिन लेयर्स बाय रेन वाटर और रनिंग वाटर। जैसे कोई खेत होता है, खेत पे जब बरसात का पानी पड़ता है तो पूरा एक लेयर मिट्टी, एक पतली लेयर मिट्टी की बहा ले जाता है, उसको हम कहते हैं शीट इरोजन। सो वन थिन शीट ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम एंटायर लैंड मास और एंटायर फील्ड एंड दैट्स कॉल्ड शीट इरोजन। ये एक एग्जांपल है, ये एक इमेज है स्ट्रीम बैंक इरोजन की। जैसे ये स्ट्रीम बह रही है और ये किनारों से मिट्टी और पत्थर सबको बहा ले रही है, तो स्ट्रीम बैंक इरोजन, किनारों से इरोजन। दिस इज गली इरोजन। इसमें क्या है कि पानी बह रहा है और उसने यहाँ पे एक रास्ता बना लिया है, फिर ये एक और बहता हुआ पानी पहले छोटा मुंह है, फिर ये बड़ा काटते 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 बहते हुए पानी ने एक बड़ा वैली या गली कार्व कर दी है, और ये है गली इरोजन। शीट इरोजन की कोई इमेज मेरे पास नहीं है, आई एम सॉरी, बट उसमें आप समझिए कि ये खेत है, पानी इसके ऊपर पड़ा और एक पतली लेयर मिट्टी की पूरे खेत से निकल गई, वो होता है शीट इरोजन। विंड के द्वारा इरोजन कैसे होता है? तो मैकेनिज्म ऑफ विंड इरोजन है, फर्स्ट मैकेनिज्म सस्पेंशन, दूसरा मैकेनिज्म सॉल्टेशन। इसमें क्या होता है? सस्पेंशन, स्मॉल एंड लाइट वेट पार्टिकल्स float in the air. So wind carries away lightweight particles. They float along with the air. That's suspension. Lightweight particles being suspended in the wind, carried away from one location to another. Suspension. Saltation. Big and heavy particles which cannot be lifted by the air. They roll or bounce along the ground with the wind, and that's called saltation. फिर mechanism of erosion by glaciers. Glaciers से भी erosion होता है. Glaciers are moving rivers of ice. And they erode surfaces. How do they erode surfaces? They erode surfaces by three mechanisms: plucking, ice thrusting, and abrasion. So what's plucking? Glaciers pluck out protruding or sticking out parts of rocks and transport them downstream. जैसे कोई पहाड़ है, ग्लेशियर उससे नीचे, जो आइस की रिवर है उससे नीचे बह रही है, और कोई निकला हुआ कोना है पत्थर का, तो आइस जो कि भारी है वो अपने साथ उस जो पत्थर का जो कोना है उसको भी तोड़ के ले जाएगी। ये होता है प्लकिंग। प्लक मतलब तोड़ना। सो ग्लेशियर्स प्लक आउट प्रोट्रूडिंग और स्टिकिंग आउट parts of rock and transport them downstream. That's plucking, one mechanism of erosion by glaciers. Then comes ice thrusting. So sediments at the base of a glacier get incorporated within the ice and get carried away to another location. So क्या होता है, जब flowing rivers of ice है तो sediment है बेस पे, वो sediment से बर्फ में जम जाती है और वो sediment अपने ओरिजिन के स्थान से फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है, बर्फ के साथ ट्रैवल करती है। आइस थ्रस्टिंग। अब्रेजन। अब्रेजन में क्या होता है? अ ग्लेशियर विद सेडिमेंट्स एंड रॉक फ्रैगमेंट्स मूव ओवर अंडरलाइंग रॉक, causing gouging, carving, and grinding up of the underlying rock surface or loose pieces within it. These loose pieces or sediments will then be transported to another location downstream. तो क्या होता है, जो flowing river of ice है उसमें पहले से ही रॉक सेडिमेंट्स वगैरह हैं, तो वो जो है अब्रेजन कॉज करने के लिए पोटेंशियल हो गई है। वो खुरदरी जो बर्फ की रिवर है जिसमें कि रॉक फ्रैगमेंट्स वगैरह पहले से ही हैं, वो जब किसी भी सरफेस के ऊपर बहती है तो वो खुरदरी सरफेस और इरोजन कॉज करती है,
और बाकी और बेड सरफेस को भी तोड़ती फोड़ती है और लूज पीसेस क्रिएट करती है, और वो लूज पीसेस को फिर अपने अंदर समा लेती है और वो वहां से ले जाती है। दैट्स अब्रेशन। रॉक्स के इंपॉर्टेंस क्या क्या है? रॉक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लिथोस्फेयर ही रॉक्स का बना हुआ है, तो जाहिर है हम उस मीडियम पर रहते हैं, तो रॉक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ह्यूमंस रॉक को कहाँ कहाँ यूज करते हैं? वी ह्यूमंस यूज रॉक इन एज बिल्डिंग मटेरियल्स. We use rocks for decoration like marbles. We make statues of marbles. We use granite for decoration. Mineral extraction. Yes, we extract minerals from ores, and ores are rocks. Lighting fire in ancient times. Pumic stones were rubbed in ancient times to light a fire, and on some spiritual and occasion, it's still done. Some fires are still lit by pumic stones. So that's also a use of rocks. So the rocks have multiple uses. I just listed a few of them for you here. So hope whatever I talked about rocks, their erosion, the rock cycle, how rocks are formed, what are the types of rocks, was understandable. आशा करती हूँ कि रॉक्स के बारे में, पत्थरों के बारे में जो भी मैंने आपको बताया, पत्थरों के प्रकार, वो कैसे बनते हैं, रॉक साइकिल क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है या कोई और पॉइंट या कोई सवाल आपके मन में, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और मैं हर सवाल का उत्तर जरूर दूं, प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगी। विद दिस, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।